Wasim, please turn on your camera. Hello, Wasim. Okay, no more request. Okay, so we are going to start now. Just for finally, please confirm from your side. Am I clearly audible to all of you? Yes, yes. Yes, all clear. Okay, okay, Yeah. okay. Okay. So कल हमारा वन डे लैग हो चुका है, ठीक है? तो आज से हमारा डे वन नहीं हो पाएगा इसी वजह से, ठीक है? क्योंकि कल हमारा ओरिएंटेशन क्लास था, बट डे वन जो है वो आपका कल से ही स्टार्ट हो पाएगा। इट मीन्स कि जो रीडिंग है वो। तो ओरिएंटेशन क्लासेस मेनली मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमारा जो मेथड है, हमारा मेथड क्या होने वाला है। Means what are the 5 basic pillars that we are going to follow to learn and to enhance the English language. Okay? Are you all getting my point? मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? Yes. ओके देखो, हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने जा रहे हैं। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने जा रहे हैं, तो इसे सीखने के लिए हम 5 पिलर्स को फॉलो करेंगे। वो 5 पिलर्स क्या क्या होंगे? यू नो, आपको यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे हर जगह पे आपको मिल जाएगा कि आपको कैसे करना है। बहुत सारे कंटेंट्स मिल जाएंगे, वोकैबलरी मिल जाएंगे। ईच एंड एवरीथिंग आर अवेलेबल ऑन ईच एंड एवरी सोशल मीडिया। ओके, बट आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं? ओके, व्हाट आर द स्टेप्स दैट आर इजी टू गो स्टेप बाय स्टेप, लाइक जस्ट अ लैडर यू आर गोइंग अप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा क्या क्या स्टेप्स होगा जिसे हम फॉलो करने जा रहे हैं। ओके, सो आर यू ऑल रेडी फॉर इट? Yes, we are ready. ओके, Vivo V2153, is it Azra? Yes. Okay, so please turn on your camera. Any problem so far? You are beautiful enough, you can turn on your camera. Okay, thank you. Nice to see you. Nice to see you, Shweta. And Ishak, maybe Ishak is facing some connecting issue, some problem. No problem. Good, good. Okay. Please be continue. Wasim, please turn on your camera. This is the first step to throw your hesitation. सबसे पहले आप फेस तो करो सामने। हमें डायरेक्टली इंग्लिश में ही बात नहीं करनी है, एटलीस्ट आप हिंदी में कम से कम कैमरा ऑन करके बात तो करो। हाँ, ये तो है। या वसीम, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। चलो ठीक है, आज के लिए छोड़ देती हूँ। आई थिंक एट फर्स्ट वी शुड टेक क्विक इंट्रोडक्शन। इज इट फाइन? Yes. डोंट वरी, आई वोंट आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चंस अबाउट यू। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करूंगी, लाइक आपने कितना ज्यादा डिग्री या कितना ज्यादा पढ़ाई कर लिया है, या आपने कहाँ कहाँ पर क्लासेस बंक किए थे, क्या क्या किए थे, वो सब नहीं पूछूंगी। जस्ट योर नेम एंड योर एड्रेस, इट वुड बी इंटरेस्टिंग। ओके, सो फ्रॉम वेयर आई शुड स्टार्ट? Shweta Sharma. Shweta is very new for me here, so I would like to start from Shweta Sharma. Okay. So Shweta, please introduce yourself. Not more, just for 4 to 5 lines is enough. Please quickly introduce yourself. Must start saying जरूरी था? Yeah, because here you are new and I want to know about you. And not only I, means everybody wants to know. Okay. And किसी और को चांस दो पहले, फिर मैं बोलूंगी। there is nothing to be worried. You are very comfortable here.
just go from Hindi, English, or broken Hindi, broken English. I'm sure that you won't go with broken Hindi because Hindi is our mother tongue. But no issue, don't worry, just go with it. We just want to know about you, okay? Doesn't matter you are going with Hindi or English, doesn't matter, okay? Just go. We are very keen to know about you. So, My name is Shweta Sharma. आवाज आ रही है मेरी? साउंड क्लियर है? is everyone getting Shweta Sharma? Yes, I'm Please excited. confirm. Okay. No. You're audible to everyone. Just go on. Yeah, Shweta, please go on. We eagerly want to know about you. क्वेश्चन करो. Okay, question. So, tell the friends, what's your full name? Your full. Myself, Azra Samreen. Okay, nice. Azra Shamreen. Can you tell me the meaning of your name, Azra? Means Azra means precious, and Samreen Nice. means a bunch of fruits. Nice. Very incredible. Okay, thank you so much, Azra. Means precious. So you're precious. Okay. And from where you are? I'm from Asansol, You're Burnpur. so अभी Asansol clear है Burnpur. sound? Yes. Yeah, now you are clear. Your voice is clear now. Okay. Actually, there was some problem with your network. No No issue. issue. Okay, Azra Samri, thank you so much for your introduction, for your quick introduction. Now we are moving forward to Shweta Sharma. Please go on, Shweta Sharma. Okay. Your So name my and name is Shweta Sharma, and I okay. am now pursuing BBA from Shulun University, and Okay. I am very excited Okay. for learn English. Or Along with you all, I'm also very excited. Like from my facial expression, you will understand that. And I'm also getting all of you. Okay, thank you so much for this one. And now, Ishak, please come. Ishak, please introduce yourself. No matter how you are introducing yourself, just go on with Hindi, Urdu, English, Bangla, whatever you want. My full name Muhammad Ishaq. Okay. Yes, my full name is Muhammad. I am from Pakistan, Punjab, Okay. Nice. and my father retired health department. Okay. चाहते हैं और इंग्लिश को भी सीखना चाहते हैं. So excited. Nice. Thank you so much. Now, Wasim. Wasim, please quickly introduce yourself. कोई नहीं, हमारे जो इंट्रोडक्शन थे वो हाफ एन आवर में कंप्लीट हो चुके हैं. आप लोग ऐसे कैमरा ऑफ कर रहे हो ना, मुझे बहुत अकेला अकेला सा लग रहा है. लाइक मुझे लग रहा है मैं किसी क्वारंटाइन में हूँ. प्लीज मेरा साथ दो यार. एक तो मैं रूम में अकेले हूँ, मुझे लग रहा है कितना अकेला अकेला सा. अब ठीक लग रहा है. नहीं अक्सर ऑनलाइन क्लास हम करते हैं तो उसमें ऑफ ही रहता है. No problem at all. You all are looking so gorgeous, so beautiful. Please. Okay. Okay. So हमारा जो introduction था, that has been finished here. Okay. And this is the first day. So we are not going with lots and lots of introduction and बड़े बड़े लाइन्स उन सबके साथ नहीं जा रहे हैं. जस्ट हमारा जो प्लानर है कि हम कैसे आगे पढ़ाई करेंगे, आई थिंक ये आप लोगों के लिए ज्यादा एक्साइटेड होना चाहिए कि आखिर हमारा स्टेप्स क्या होगा. बिकॉज लिटरली मैंने जो स्टेप्स ये सोचा है एंड बनाया है, ये बहुत ही यूनिकली डिजाइंड है. सो प्लीज आप लोग उसे एक बार देख लो और समझ लो. एंड मैं कॉन्फिडेंट हूँ उस यूनिक स्टेप्स के साथ, बट फिर भी
आप लोगों का जो फीडबैक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मैं अभी सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगी, लाइक हाउ वी विल गो, ओके, फॉर 5 days with a whole month, 2 months, 3 months, how we will go, what will be our steps. But एट द एंड आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे, आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हो, आप लोग पूछ सकते हो, और अगर आप लोगों को कहीं लगता है कि नहीं यहाँ पर कुछ चेंजेस होने चाहिए, देन इट इज टोटली फ्री, ओके। आप लोग पूछ सकते हो एंड आप लोग अपना एडवाइस भी दे सकते हो कि नहीं यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए। आई एम रियली रेडी टू गेट इट फ्रॉम यू। चलो ओके, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारा स्टेप्स क्या होगा? Okay. Please let me know if my screen is visible to all of you. Is it visible? No. No? No. Just a minute. Show. Yes. Now it's visible. Yes, हो गया शो। Okay, so is it visible to all of you? ओके, हाँ जी, हो गया। Yes. Okay, बिल्कुल। all right. मुझे इसे थोड़ा बड़ा करना होगा या आप लोग समझ सकते हो देखकर? क्लियरली विजिबल है? हाँ 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 ठीक है। सही। इतना ठीक ओके, है। सो आज हमारा फर्स्ट डे है और मैंने वो एक पेन टैब वो नहीं ली हूँ मैं, जिससे मैं आपको थोड़ा अंडरलाइन करके थोड़ा हाईलाइट करके बता सकूं, बट आई थिंक आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। जहां भी मैं क्या रीड कर रही हूँ, क्या समझाना चाह रही हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट कि आप लोग उसे समझ जाएंगे, राइट? Yes. ओके, राइट। ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर में देखो, आप लोगों को दिख रहा होगा आवर 5 day स्किल बेस्ड स्ट्रक्चर, ओके। हाउ मेनी क्लासेस वी आर गोइंग टू टेक इन अ वीक? एक वीक में हमारा कितना क्लासेस होने वाला है? दैट्स 5। 5. यू ऑल नो? Yeah. ओके, यू ऑल नो दैट। लाइक डे 1, डे 2 दिखाती हूं मैं, ये डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, and yeah, day 5 is the last day, and day 5 would be the very interesting day. Okay, so now day 1, what would be our day 1? देखो, जिसको जहां भी प्रॉब्लम होगी प्लीज मुझे बोलना कि हाँ ये चीज समझ में नहीं आया, वहीं पर आप जो है इंटरप्ट कर सकते हो, ठीक है, बीच में रोक सकते हो मुझे, ठीक है। अगर ऐसा लगे कि नहीं पूरा का पूरा हिंदी में समझाना चाहिए तो आई एम रेडी फॉर इट, मैं पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी, ओके। या पहले मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगी, देन मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगी, एंड 5 to 10 टाइम्स जितना बोलोगे उतना एक्सप्लेन कर दूंगी, नो मैटर एट ऑल। बट ऐसा कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए, पूरे अच्छे से आप लोग समझ लेना क्या मेथड्स है, ओके। रेडी? ओके, रेडी। नाइस, थैंक यू। देखो, डे 1 आपका मंडे होगा, ओके। एंड ये जस्ट इस वीक से हमारा थोड़ा 1 डे का डिले हो रहा है। यू ऑल नो कि क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा कल ओरिएंटेशन नहीं हो पाया, तो ओरिएंटेशन क्लास आज हो रहा है हमारा। बट नेक्स्ट जो हमारा वीक होगा, वो वीक से हम लोग इस रूटीन को बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे। डे 1 हमारा मंडे होगा और डे 1 में हम क्या करेंगे? रीडिंग करेंगे, ओके। क्या होगा हमारा? रीडिंग। Day 1 means Monday class would be totally dedicated to reading. अब रीडिंग में मेनली हम क्या करने वाले हैं? On the screen there would be a paragraph of 9 to 10 lines. जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ लिखा है a paragraph of 9 to 10 lines will be shown on the screen. ओके, आपके स्क्रीन के सामने एक पैराग्राफ होगा, कितने लाइंस का? 9 to 10 लाइंस का। या फिर अभी हमारा क्या है कि शुरुआत है ना, तो हम नहीं चाहते कि आप लोगों को शुरू से ही बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क दे दें, तो हो सकता है मैं 4 to 5 लाइन ही दूंगी, उससे ज्यादा नहीं दूंगी। धीरे धीरे जब मुझे समझ में आएगा कि आप लोग कितना ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हो, लाइक
really what's your capacity to grab the contents. Then after that I would start to add up more and more for you. Okay, कुछ ऐसा होने वाला है. तो सपोज आपके सामने 9 to 10 लाइंस का एक आएगा पैराग्राफ. कैसा होगा वो मैं दिखा देती हूँ. Is it visible to everyone? Yes. ओके. तो इस तरह से आपके सामने एक पैराग्राफ आएगा. सपोज अगर आपका फर्स्ट डे है, लाइक रीडिंग आपका कल होने वाला है. ओके, सो आपका रीडिंग कल होने वाला है. मैं आपको कल यहाँ से समझो कि मैं जस्ट यहाँ तक एक लाइन दूंगी जिसमें आपको पहले रीड करना होगा एंड यू हैव टू रीड इट 3 times. हाउ मेनी टाइम्स? It's 3 times. 3 times. You have to read it. Okay, like I'm reading. Just listen it. Do you keep procrastinating on important jobs? Do you often feel restless and unable to focus on the task at hand? Do you have trouble getting excited about the important goals that could improve your life? If so, you might need a dopamine detox. तो इस तरह से आपको ना 3 times रीड करनी है. एंड रीडिंग में आपको ध्यान रखना है कि आपका क्वेश्चन मार्क कहाँ है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहाँ है और एंड कॉमा कहाँ है. ओके, ये सब आपको ध्यान रखना है ताकि आप एक्सप्रेशन को मेंटेन कर सको. बट आपको इतना फेयरफुल नहीं होना है. देयर इज नो नीड टू बी वरी. वी आर हियर टू लर्न एवरीथिंग. हम यहाँ पर सीखने के लिए आए ना हर एक चीज. तो आपको जरा सा भी फेयरफुल नहीं होना है. हम लोग धीरे धीरे हर एक चीज को सीखेंगे. ओके, तो आपको इसे 3 times क्या करना होगा, रीड करना होगा. एंड जस्ट आफ्टर रीडिंग मैं आपको 5 minutes का टाइम दूंगी. हाउ मेनी? 5 times. उस 5 minutes में आपको जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है, डू यू कीप प्रोक्रेस्टिनेटिंग ऑन इम्पोर्टेंट जॉब, जो भी आपने पढ़ा है और उससे आपको जो भी थोड़ा बहुत एक आइडिया हुआ है वो आपको अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है. ठीक है, फर्स्ट डे एंड मे बी फर्स्ट वीक. एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि पूरे शुरुआती 1 महीने तक में आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं. थोड़ा हिंदी में, थोड़ा इंग्लिश में, ऐसे कर करके हम लोग मैनेज कर लेंगे. ठीक है, तो अपना फर्स्ट डे का कुछ ऐसा होगा कि ये आपको 9 to 10 लाइन्स दिए होंगे. आप इसे पढ़ोगे और पढ़ने के बाद 5 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा. आप सोचोगे कि हाँ मैंने क्या पढ़ा और किस बारे में ये बताया जा रहा है. ओके, ये किस बारे में बताया जा रहा है मेनली. एंड आफ्टर दैट आप उसे अपने लैंग्वेज में, अपने इजी लैंग्वेज में, इंग्लिश में, अपने ब्रोकन इंग्लिश में, जैसे भी आप उसे एक्सप्लेन करोगे. ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए आपको 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes, आई थिंक 5 minutes बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो स्टार्टिंग में 2-3 minutes दिया जाएगा. ठीक है, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम लग रही है आप लोगों को? नहीं. एंड डरने की बात एक मतलब कि डरना नहीं है, बिकॉज आप लोग सोच रहे होंगे कि मीनिंग्स कहाँ से आएंगे, मीनिंग्स कैसे समझेंगे. तो देखो, मैं मीनिंग्स भी ना इस तरह से मैं सामने लिख कर दे दूंगी. ये देखो, आपका मीनिंग सारा कुछ सामने है. लाइक प्रोक्रेस्टिनेट. प्रोक्रेस्टिनेट क्या है? टू डिले और पोस्टपोन एक्शन. टू डिले, ठीक है. प्रोक्रेस्टिनेट क्या होता है? लाइक suppose you are getting an assignment from your college, okay, and you have the duration, you have the timeline of just 20 days. 20 days का timeline है कि आपको आपका assignment complete करना है. बट क्या है ना कि हमें असाइनमेंट वगैरह करने में उतना मजा नहीं आता जितना मजा हमें रील्स वगैरह देखने में आता है, राइट? तो या फिर वेब सीरीज हो गया, तो उतना मजा तो आता नहीं है. और हमें आदत हो गई है, हमें जस्ट विद इन अ सेकेंड हमें वो मजा मिलता है स्क्रॉलिंग कर करके रील्स वगैरह. तो कहाँ वो विद इन अ सेकेंड हमें मजा मिल रहा है रील्स वगैरह स्क्रॉल करके, और कहाँ ये असाइनमेंट का काम जो बैठकर घंटों घंटों बैठकर बनाना है. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, हम प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू कर देते हैं कि yeah, I have 20 days, so from tomorrow I will start to make my assignments, right? ऐसा होता है क्योंकि हमें लगता है बहुत ज्यादा दिन है और हम सिर्फ अपने काम को ना पोस्टपोन कर रहे होते हैं. ठीक है, कल से कर लेंगे, या I will start from tomorrow, I have lots and lots of days, I will start from the day after tomorrow. and then बीच में कोई पार्टी शार्टी आ जाती है, फिर आप बोलते हो कि
let's enjoy the party. Right now I have 15 days to complete the assignment, so I would do it later. एंड ऐसे करते करते आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो और बहुत ज्यादा डिले हो जाता है, राइट? तो ये प्रोक्रेस्टिनेट है, एंड देन एपैथी, इरोड्स सेल्फ एस्टीम, ठीक है? तो इस तरह से ना मैं आपको सारा वर्ड मीनिंग भी दे दूंगी, सो इट विल बी वेरी इजी टू यू. आपको रीड करना है, 3 टाइम्स रीड करना है, एंड देन 5 टाइम्स आपको सोचना है कि आपने क्या पढ़ा है और उसको आप कैसे इंग्लिश में बोलोगे, एंड मीनिंग आपके सामने है, आप बोल सकते हो. अगर आपको बहुत ज्यादा इश्यू हो रहे हैं, देन यू कैन गो विथ हिंदी एट स्टार्टिंग डेज. देयर इज नो एनी इश्यू, ओके? आप हिंदी के साथ भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, एक चीज मुझे आप लोग एडवाइस दो कि हियर आई हैव मेंशन द वर्ड मीनिंग इन इंग्लिश टू इंग्लिश. शैल आई मेंशन इट इन इंग्लिश टू हिंदी और उर्दू? शैल आई डू दैट? क्या लगता है आप लोगों को, इंग्लिश टू इंग्लिश आप समझ पाओगे या मुझे थोड़ा कंफर्टेबल करने के लिए हिंदी या उर्दू में भी दे देना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? साइड में अगर हिंदी उर्दू रहा तो सही रहेगा ना, फिर समझने में जिनको थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो कंफर्म हो Right. जाएगा कि आप जो वो हाँ, सोच मुझे रहे हैं भी वो ऐसा लगता सही है कि सोच रहे हैं या उर्दू फिर और हिंदी में दे गलत देना तो वो मीनिंग है. काफी हाँ, इजी हो जाएगा. क्योंकि क्या है ना कि इंग्लिश इज फाइन, बट हमें जो फील आता है वो अपना उर्दू और हिंदी से ही आता है. हाँ, वही बात है. वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके नहीं, इंग्लिश कितनी बार हम में सोचते कुछ और है बट होता मीनिंग कुछ और है. एग्जैक्टली. Azra is saying something. Azra, please. कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि इंग्लिश से थोड़े टफ लगते हैं, लेकिन उर्दू में समझ आने में फिर आसानी हो जाती है. हाँ बिल्कुल, जैसे कि देखो अभी इंग्लिश में इतना बड़ा बड़ा मीनिंग लिखा हुआ है, जबकि है कुछ नहीं वो सब, बट इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस में लिखा हुआ है. तो हम एक काम करते हैं, वही मुझे एडवाइस चाहिए थी आप लोगों के साइड से. थैंक यू सो मच फॉर इट. तो मैं क्या करूंगी ना, उसे हिंदी में भी कर दूंगी और उर्दू में भी. जिनका हिंदी मीडियम है वो हिंदी में देख लेंगे, जिनका उर्दू है वो उर्दू में देखेंगे. ओके, ये काफी इजी होगा. थैंक यू. वेलकम. एंड ये स्टार्टिंग के कुछ ही दिन के लिए रहेगा, ये बहुत ज्यादा लंबा समय तक नहीं चलेगा, लाइक फॉर 1 month मे बी. और मैं बहुत श्योर हूँ आप लोग 1 month में बहुत ज्यादा ट्रेन हो जाओगे. नो इशू, नो नीड टू बी वरी फिर हम खुद अबाउट ही इट. हटवा देंगे उसे. ओके. हाँ, हम खुद ही हटवा देंगे उसे. आई लाइक दिस कॉन्फिडेंट रियली. ओके, हम फिर चलते हैं वापस. तो ये हमारा शेड्यूल था रीडिंग का. मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, जस्ट गिव मी अ मिनट. मुझे भी लगी है बहुत पानी पी. आप लोगों को भी पीना है तो पी लो, बिकॉज इट्स वेरी नेसेसरी टू बी हाइड्रेटेड. ओके, टेक सम वाटर. Okay. Yeah, so my break has been over. Yes, I'm back. आई ऑल्सो. Have you all taken water? तुम लोगों को ये क्यों पढ़िए प्यास बता. तुम लोगों को क्यों प्यास लगेगी? तुम लोगों को तो सिर्फ सुनना था. बैठ के सुनने से भी प्यास लग जाती है. Shweta, let Shweta come, then we are going forward. I think again disconnect. Okay, आगे, ठीक है. चले फिर हम आगे चले. Okay. हाँ, बिल्कुल. प्लीज सब लोग कंफर्म कर लो, आगे चले फिर. हाँ, ओके. ठीक है. हमारे पास 3 to 4 लाइन्स के पैराग्राफ होंगे. वी हैव टू रीड दैट पैराग्राफ एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट द पैराग्राफ इज टेलिंग अस. ओके, फिर माइंड में आपको एक माइंड मैप बनाना है कि आप क्या समझ रहे हो उसे, एंड देन आपको वो एक्सप्लेन करना है. आपको बहुत ज्यादा टाइम दूंगी, और ऐसा बिल्कुल मत समझना कि जिस टाइम पे आप बोलना शुरू कर रहे होगे वहां पे मैं आपको बिल्कुल अकेला छोड़ दूंगी. ऐसा बिल्कुल नहीं है. आई विल गिव यू हिंट अगेन एंड अगेन, ठीक है?
जो भी आप पैराग्राफ पढ़े हो उसे आप बोलने जा रहे हो और आप सोच रहे हो, आप सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पा रहे हो, मैं आपको हिंट दूंगी, मैं आपका पूरा हेल्प करूंगी कि आप उसको बोल पाओ। ओके, तो जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं आपको फेस करना, जरा सा भी ये नहीं सोचना है कि कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, important vocabulary from that paragraph will be displayed, ये हो गया। फर्स्ट आई विल रीड द पैराग्राफ अलाउड, सबसे पहले तो मैं पैराग्राफ पढ़ूंगी, ठीक है, सबसे पहले मैं पढ़ूंगी, जिससे आप थोड़ा देख लेना कहाँ पर क्या प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। एंड बिल्कुल हो सकता है मेरे प्रोनाउंसिएशन भी खराब हो सकते हैं, देन प्लीज करेक्ट मी वेयर एवर आई विल बी रॉन्ग, ओके। एंड देन आई विल एक्सप्लेन ईच सेंटेंस, मैं भी आपको पहले एक्सप्लेन करूंगी, जो भी लिखा होगा ना आपको टेंशन नहीं लेना है, जो भी लिखा होगा पहले मैं रीड करूंगी, फिर मैं आपको समझाऊंगी इजी लैंग्वेज में, उसके बाद आप लोगों को दिया जाएगा। आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस, नॉट जस्ट वर्ड्स, ठीक है। अब देखो यहां तक तो हो गया कि हम क्लास में कैसे करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू रीड इन आवर क्लासेस टाइम, क्लास का जो हमारा ड्यूरेशन है 1 आवर का, उस 1 आवर में हम कैसे कैसे करेंगे, ये तो वो हो गया। अब आता है कि मैं आपको होमवर्क में क्या देने वाली हूँ, ठीक है, स्टूडेंट एक्टिविटी। इज इट विजिबल टू एवरीवन स्टूडेंट एक्टिविटी? यस। ओके, स्टूडेंट Yes. एक्टिविटी ये आपके लिए होगा, ये आपको क्या करना है, स्टूडेंट विल बी सिलेक्टेड वन बाय वन, ओके ना, ओके, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि मैं 1 बाय 1 एक एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करूंगी और स्टूडेंट को रीड करना है पैराग्राफ को और फिर उनको अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है। और यहाँ पर एक लाइन आप लोगों के लिए है, ध्यान से देखो लास्ट वाला, एक्यूरेसी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ट्राइंग इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आप फर्स्ट डे से ही एक्यूरेट होने लगो, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, एक्यूरेट आपको होना ही नहीं है, आप जितना ज्यादा मिस्टेक करोगे उतना ज्यादा मुझे मुझे अच्छा लगेगा। द मोर यू विल मेक मिस्टेक द मोर आई विल लव यू। सो एक्यूरेसी इज नॉट इम्पॉर्टेंट हियर, ट्राइंग इज इम्पॉर्टेंट, आप कितना ज्यादा ट्राई कर रहे हो, लाइक आप सेंटेंस फॉर्म कर रहे हो 10-10 बार 15 बार रॉन्ग हो रहा है, फिर भी आप गिर रहे हो उठ रहे हो, गिर रहे हो उठ रहे हो, एंड अगेन यू आर ट्राइंग टू मेक द सेंटेंसेस, दैट इज वेरी अट्रैक्टिव फॉर मी, मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा। सो प्लीज कीप इट इन योर माइंड, एक्यूरेसी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ट्राइंग इज इम्पॉर्टेंट, आपको ट्राई करते रहना है, ठीक है। नाउ रीडिंग हैबिट बिल्डिंग आफ्टर क्लास, हाँ, जब आपका 1 आवर का क्लास खत्म होगा उसके बाद मैं आप लोगों को 15 मिनट्स के लिए रीड करने के लिए बोलूंगी और वो आपको मीट में रह के ही करना है, मेरे सामने ही करना है, ठीक है। मुझे बहुत कड़ी वाली निगरानी रखनी है इस पे, मुझे 15 मिनट्स तक आप लोगों को देखनी है कि आप लोग रीड कर रहे हो, ओके। मैं ये 1 आवर करने वाली थी बट फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अभी स्टार्टिंग के लिए इतना नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैंने 15 मिनट्स के लिए रखा है, तो आपको 15 मिनट्स के लिए ही रीड करना होगा। तो जब आपकी रीडिंग क्लास 8 to 9 खत्म हो तो प्लीज आप लोग जाइएगा मत, 15 मिनट्स आप लोगों को रीडिंग करनी है देन जाना है। तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना 9 to 9:15 रीड करने में मेरे सामने? नहीं नहीं कोई नहीं। नहीं, कोई श्वेता, इशू नहीं है। मैं पर्सनली भी बोल रही हूँ, मतलब पर्सनली हो तो नहीं, आप लोग सब यहाँ पे सब एक साथ हो, लेकिन पर्सनली 1 by 1 मैं बोल रही हूँ कि अगर आपसे हो सकता है आप रोजाना का 1 आवर अगर रीडिंग कर सकते हो, इट वुड बी द बेस्ट, प्लीज अगर हो सकता है तो करो। मैंने आपको 15 मिनट्स दे दिया ये सोचकर कि शायद आपका हैबिट नहीं बन पाएगा, बट इफ यू कैन guys please do it, it is very necessary because you are 1 hour not the after child. class. Yeah, after class 1 hour. It is up to you whenever you want. आफ्टर द क्लास फॉर 15 मिनट्स, मतलब क्लास के बाद 15 मिनट्स मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि मैं आपके ऊपर नजर रख सकूं। यहाँ पर एक्चुअली मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि आप लोग करोगे या नहीं, इसीलिए। क्लास से पहले एंड Okay. एक चीज ध्यान रखना आप लोग, हम लोगों ने एक बुक फॉलो किया है दैट इज डोपामिन डिटॉक्स, प्लीज उस बुक को अगर आप परचेज कर सकते हो देन प्लीज परचेज इट, या फिर पीडीएफ अवेलेबल है आप वो ले लो, ठीक है। डोपामिन डिटॉक्स, प्लीज मैं थोड़ा यहाँ आ जाती हूँ, थोड़ा मैं देखना चाहती हूँ सबको। हाँ देखो, डोपामिन डिटॉक्स हमने बुक इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि मैं ना आप लोगों के लिए कोई स्टोरी बुक भी ले सकती थी, बट अभी हमारा जो टाइम है, हम जिस जनरेशन में है, हम काफी डिस्ट्रैक्टिव जनरेशन में, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है हमारे आसपास, यू ऑल नो इट, जानते हो ना सब।
बहुत सारा, तो Yes, yes. डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है और हम सबके साथ है ये चीज, कोई भी इससे खाली नहीं है, कोई नहीं बोल सकता या आई एम फ्री ऑफ इट। तो एक बुक है डोपामिन डिटॉक्स, वो आपको बहुत सारी चीजें सिखाएगा, आपको रीडिंग के साथ साथ ना वो आपको समझो कि एक मेडिटेटिव एक पर्सन बना देगा, उस तरह का एक मेडिटेशन काइंड ऑफ बुक है वो। अगर पढ़े हो कभी आप लोग देन इट्स वेरी नाइस, बट प्लीज आप लोग, हम लोग उसे ही फॉलो करने वाले हैं, ओके। तो डोपामिन डिटॉक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, आप लोग रेडी रहिएगा उसके साथ। एंड चलो रीडिंग हो गई, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने डे 2 में, ओके। इज देयर एनी प्रॉब्लम सो फार? No. Nothing. Okay, in the boxes I have also mentioned that after 1 to 2 months reading time will be increased 15 to 30 minutes, 30 to 45 minutes. This improves focus, concentration and understanding. चलो रीडिंग हमारा कंप्लीट हुआ, अब हम बात कर लेते हैं ये हमारा डे 2 लिसनिंग के बारे में। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes. ओके, ये है हमारा लिसनिंग, मतलब समझो कि ये हमारा ट्यूसडे का रूटीन है। मंडे रीडिंग हो गया, अब ट्यूसडे को हम क्या करने वाले हैं, लिसनिंग करने वाले हैं। लिसनिंग में हम क्या करेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मैं दिखाती हूँ, देखो। वी विल प्ले एन ऑडियो ऑफ 40 seconds to 1 minute 3 times repeatedly। आपके सामने मैं ना एक ऑडियो प्ले करूंगी, ठीक है, इंग्लिश में होगा वो ऑडियो, और स्टार्टिंग टाइम में बहुत ज्यादा नहीं होगा, 40 minutes to 1 minute। Okay, so basically there would be an audio of 40 seconds or 1 minute. I will play the audio. You have to listen the audio carefully. आपको बहुत ध्यान से ऑडियो को सुनना है। कितने टाइम्स? How many times? 3 times। ठीक है, 3 times, 5 times मैं दूंगी सुनने के लिए, आपको ध्यान से सुनना है। एंड सुनने के बाद आपको ऑब्जर्व करना है एक्सेंट, एक्सप्रेशंस। चलो इतना ज्यादा बड़े नहीं दूंगी स्टार्टिंग में, आपको एक्सेंट, एक्सप्रेशंस वो सबको साइड में रखो। शुरुआती में क्या करना है, आपको जस्ट सुनना है, एंड सुनने के बाद आपको समझना है कि ओवरऑल वो कहना क्या चाह रहा है, स्टोरी क्या है। जस्ट एन एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है वो एंड कैसे करना है। इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, डोंट वरी। लाइक आपको अगर आवाज है मुझे बताना। A thirsty crow found a pitcher with very little water at the bottom. सुन पा रहे हो? Since he couldn't reach it, he came हाँ, up आवाज तो आ रही है। with a plan. He started picking up small pebbles and dropping them into the pitcher one by one. Slowly, the water level rose to the top, allowing him to drink easily. Through his hard work and intelligence, the crow quenched his thirst and flew away happily. Okay, is there any problem in the volume? Nothing. मतलब आप लोग समझ पा रहे हो या आवाज में कोई प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा नहीं है वॉल्यूम या ज्यादा करना होगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, क्लियर है। अजरा? क्लियर है, मतलब थोड़ा वर्ड थोड़ा समझ कहीं कहीं थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बट ठीक से नहीं आ रहा अच्छे से, मतलब क्लियर जैसे अच्छा, आप बोल रहे हैं उस तरीके से साउंड नहीं आ रहा। एक बार और मैं प्ले करती हूँ, जरा ध्यान से सुन लो, मुझे अभी भी फीडबैक दे दो, नहीं तो मैं कल से ना, मतलब नेक्स्ट हमारा, ये तो जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ ना, ये तो जस्ट डेमो है कि आपको कैसे कैसे होगा, बट आपको मेन टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बार और प्ले कर रही हूँ, 2-3 बार ध्यान से सुनो, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ आता तो प्लीज मुझे बताना, तो मैं कुछ और रास्ता देखूंगी इसके लिए। A thirsty crow found a pitcher with very little water at the bottom. Since he couldn't reach it, he came up with a clever plan. He started picking up small pebbles and dropping them into the pitcher one by one. Slowly, the water level rose to the top, allowing him to drink easily. Through his hard work and intelligence, the crow quenched his thirst and flew away happily. अभी क्लियर था, थर्स्टी क्रो। थर्स्टी क्रो, राइट। ठीक है, ओके, मीन्स ये वर्क कर रहा है, ठीक है ठीक है। तो इसी तरह से मैं स्टार्टिंग डेज में आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग स्टोरीज ही लाऊंगी जो आप लोगों ने बचपन में रिपीटेड टाइम्स सुना हुआ है, नॉट न्यू, ओके। वो आपको 3 times या 5 times प्ले किया जाएगा। यू हैव टू लिसन इट केयरफुली एंड देन यू विल गेट 5 minutes to think about द फॉर्मेशन।
5 मिनट्स का टाइम दूंगी आपको ऑडियो सुनने के बाद। आपको सोचना है कि आपने क्या सुना है और आपको कैसे सेंटेंस फॉर्म करके बताना है, ठीक है। आपको प्रॉब्लम होता है आप हिंदी में बताओ, कोई बात नहीं है, थोड़ा इंग्लिश में बताओ, हो जाएगा, मैनेजेबल है वो सब, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आपका लिसनिंग के लिए था, ठीक है। अब आपको लगता होगा कि ये इतना छोटा छोटा स्टेप्स क्या ये हेल्प करने वाला है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि लर्निंग अ लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज, नॉट ओनली इंग्लिश, एनी लैंग्वेज, whether you are learning Bengali and Tamil, Hindi, Urdu, for every language, it is very gradual process. What is ये slow and gradual process है ये आपका, ठीक है। अब देखो ये लिसनिंग जो है 5 मिनट्स, आप लोग 5 हो एक बैच में, यू ऑल आर 5, तो पांचों स्टूडेंट के लिए मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं 5 टाइम्स 5 × 3 15 टाइम्स प्ले किया जाएगा, 15 टाइम्स प्ले किया जाएगा, एंड आफ्टर दैट एवरी स्टूडेंट विल टेक टाइम टू एक्सप्लेन द स्टोरी। हर एक स्टूडेंट 5 मिनट्स लेंगे, एक्सप्लेन करेंगे स्टोरी को, और आप सब एक दूसरे को सुनोगे, ओके। तो इससे क्या होगा कि इससे बहुत हेल्प होगा आप लोगों को, क्लासेस के अंदर ही एक दूसरे को आप काफी सुन पाओगे, आप भी साथ साथ बोल पाओगे, तो ये काफी हेल्प करने वाला है, ठीक है। एंड लिसनिंग में आपका होमवर्क क्या होगा, हम फिर यहाँ आ जाते हैं। होमवर्क क्या है, देखो यहाँ पर बड़ा सा होमवर्क जो येलो कलर में लिखा है, दिख रहा है ना सबको, ओके। फॉर होमवर्क पर्पस अ 5 मिनट ऑडियो विल बी प्रोवाइडेड। आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे 5 मिनट्स का ऑडियो प्रोवाइड किया जाएगा, और वो होमवर्क होगा आपका। आपको उस ऑडियो को सुनना है मल्टीपल टाइम्स, जितना सुन सकते हो सुनो, आपका दिन अपनी है, रात अपनी है, जितना सुनना है सुनो, एंड राइट इट टू योर नोटबुक। सुनने के बाद आप अपने कॉपी में उसे लिखना, ठीक है, जो भी आप सुन रहे हो, जो भी समझ रहे हो। इट इज नॉट नेसेसरी टू कॉपी द सेम ऑडियो। ऑडियो में जो कहा जा रहा है उसको एकदम सेम डिक्टो नहीं करना है, आपको जो समझ में आ रहा है आप लिखो। कुछ नहीं समझ आए तो अपने बारे में लिख देना, अपनी तारीफ लिख देना, बट कुछ ना कुछ जरूर लिखना, ओके। मेंटेन द प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स बाय लिसनिंग, ठीक है। पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह को हम देख लेंगे बाद में, अभी रहने देते हैं, इतना बर्डन नहीं देना अभी। तो रीडिंग एंड लिसनिंग बोथ आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू, शैल आई गो फॉरवर्ड? हाँ मतलब रीडिंग एंड लिसनिंग क्लियर है आप लोगों को, मैं आगे चलूंगा? हाँ ओके ओके। एक क्वेश्चन है मेरा, इसको जो आपने ऑडियो प्रोवाइड करनी है, हम जैसे 5 बंदे हैं, राइट, तो 5 को अलग अलग ऑडियो दी जाएगी या एक ही ऑडियो दी जाएगी? वेरी नाइस क्वेश्चन। आई हैवंट थॉट अबाउट इट, बट देखती हूँ। क्योंकि अगर 5 को एक ही ऑडियो दी जाएगी तो हम 5 जो एक दूसरे का आंसर कॉपी करेंगे, हम अपने दिमाग से तो नहीं सोचेंगे ना। हाँ, बात तो सही है, इस बारे में मुझे सोचना होगा वैसे। आई हैवंट थॉट अबाउट इट सो फार, ओके, ठीक है, सोचती हूँ इस बारे में क्या करना चाहिए। चलो ठीक है। तो हमारा डे 3 है आपका वोकैबलरी का, और ये और भी ज्यादा डे इंटरेस्टिंग। 2 है ही इसीलिए कि सुन के बोल सके। हाँ। अब आपका डे 3, अच्छा ये बोल रहे हो मतलब कि लिसनिंग, लिसनिंग, ओहो इशाक, मैं थोड़ा देर से समझी एक्चुअल में, मुझे लगा होमवर्क वाली बात कर रहे हो तुम। क्लास वर्क में ना, क्लास वर्क में मतलब सेम ऑडियो होगा या नहीं? नहीं, सेम ऑडियो होगा, क्लास वर्क में आपको सेम ऑडियो दिया जाएगा। वेरी आसरा, फिर तो हम एक दूसरे का आंसर कॉपी करेंगे ना, ऐसे आप दिमाग से तो नहीं सोचेंगे। कर लो तो अच्छी बात है, लेकिन कर पाओ तब ना। अगर कर लो तो अच्छी बात है, क्योंकि समराइज हमारा कितने मकसद, देर तक रहेगा? सब तो भूल ही जाते हैं थोड़ी हमारा देर में। हमारा मोटिव क्या है कि हम इंग्लिश बोलें, है ना। अब कॉपी करके बोलो या जैसे भी बोलो, आपको बोलना है। आप कॉपी करके बोलो तो बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम, सबको सेम ऑडियो दिया जाएगा। थोड़ा बहुत अगर आप खुद से चेंजेस कर सकते हो तो वो आपके लिए ही अच्छा होगा, बट कोई नहीं। अजरा, हाँ अजरा है, ओके। इसमें हमें ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, फिर एक को कॉपी नहीं करना पड़ेगा, अपने दिमाग से करना पड़ेगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कर सकते हो, कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, डे 3 में आते हैं, ज्यादा टाइम हो जाएगा,
9 o'clock हो चुके हैं। चलो डे 3 वोकैबलरी। वोकैबलरी में क्या है देखो, वोकैबलरी में हम वो आपको ट्रेडिशनल तरीका नहीं देना चाहते हैं, लाइक नोट इट डाउन 10 vocabularies एंड फिर मेमोराइज इट, वो सब नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। और वो होता भी नहीं है, मुझे पता है। तो आपको क्या करना है ना, क्लासेस में ही फन वे में आपको वोकैबलरी जो है वो मेमोराइज करनी है। कैसे करनी है देखो, डे 3 इज द मोस्ट फन एंड क्रिएटिव डे। क्रिएटिव डे तो होगा ही, vocabulary day. How we teach vocabulary? We provide 5 daily use vocabulary words, idioms और phrases. हम आपको vocabulary वाले दिन 5 vocabs, idioms या phrase ये देंगे आपको। These are words you can actually use in life. और ऐसे words रहेंगे जो आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से दिया जाएगा। Every student gets 5 minutes. हर एक स्टूडेंट को 5 मिनट दिए जाएंगे और काफी साइलेंस रहेगा, पिन ड्रॉप वाला साइलेंस। Students imagine a situation, they create a story using all 5 words. आपको 5 वर्ड्स दिया जाएगा, उसके बाद आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उन 5 वर्ड्स को यूज करके ना आपको एक स्टोरी बनानी है। ये काफी फन होगा एंड वेरी क्रिएटिव। इससे क्या होगा कि आपकी ब्रेन डेवलपमेंट ये इसके लिए भी बहुत अच्छा होगा, लाइक स्पॉन्टेनियस थिंकिंग एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि आप प्रेजेंटली कितना अच्छा सोच सकते हो और बोल सकते हो। बट प्लीज नेवर थिंक वी आर गोइंग टू जज यू। हम कभी जज नहीं करने जा रहे किसी को भी, आप धीरे धीरे सीखोगे, ठीक है। और ये काफी डिफिकल्ट टास्क है, इसमें किसी को जज नहीं किया जा सकता। तो आपको 5 वोकैबुलरी दिए जाएंगे, उसको देखना, उसके मीनिंग को समझना, और फिर आपको ना अपने मन में कहानियां बनाना है उस 5 वर्ड्स को लेकर, कि इन 5 वर्ड्स को लेकर मैं क्या क्या कहानी बना सकती हूँ। और ये काफी फैंटेसी होगा, आपका चाइल्डहुड, आप लाइफ में जो करना चाहते हो कुछ भी उस तरह का, जैसा कहानी बनाना है बनाकर बता दो उस हिंदी में बतानी है। अगर आपको स्टार्टिंग टाइम में अगर आपको स्टार्टिंग टाइम में इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रहा है देन गो विथ हिंदी। ओके। टेंशन मत लो, आप लोग हिंदी में अगर जाते भी हो तो मैं ट्रांसलेट करते जाऊंगी उसको इंग्लिश को, फिर आप उसको इंग्लिश में रिपीट कर लेना, तो ऐसे करके हैबिट बिल्ड हो जाएगी, ठीक है। हाँ हाँ, बस 20-25 दिन के बाद तो हम खुद आपसे कहेंगे हिंदी को छोड़ दें। हाँ ठीक है। हाँ। ओके, तो ये आपका वोकैबुलरी होगा, ठीक है। वोकैबुलरी के लिए कुछ एग्जांपल दूं या आप लोगों को क्लियर है? आई थिंक क्लियर। क्लियर है? Okay. Speaking activity. One by one student explain their stories. No reading, only imagination is speaking. ठीक है। अब देखो होमवर्क में क्या होगा, स्टूडेंट्स क्रिएट अनदर स्टोरी यूजिंग द सेम 5 वर्ड्स। आपको वही सेम 5 वर्ड्स दिए जाएंगे और आपको फिर दूसरी स्टोरी क्रिएट करनी है, ठीक है। वो सेम स्टोरी नहीं जो आपने क्लास में बताया है, आपको दूसरी स्टोरी क्रिएट करनी है। ये ओवरऑल क्या होगा ना, एक तो आपका थिंकिंग जो है वो इम्प्रूव करेगा, आपकी जो स्पॉन्टेनिटी है उसको ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। उसके साथ साथ जो है आप जब इतने 5 वर्ड्स को बार बार स्टोरी बनाओगे, बार बार यूज करोगे, तो ये आपको ऑटोमेटिकली नेचुरली आपको याद हो जाएगा। आपको अलग से बैठ के मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा डे 4 है। डे 4 आपका ग्रामर है एंड ग्रामर इज वेरी नेसेसरी। ग्रामर ही तो फाउंडेशन है, ठीक है। डे 4 आपका ग्रामर है। ग्रामर में आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है। ग्रामर इज इंपॉर्टेंट but only when taught correctly, right? Our grammar method. तो ग्रामर मेथड में आपका समझो जैसे आप बचपन में सीख रहे थे मेनली वैसा ही होगा, इसमें ऐसा कुछ न्यू नहीं होने वाला है। बिकॉज ग्रामर में हम क्या कर सकते हैं, ग्रामर में तो आपका थ्योरेटिकल है ना, इट इज टोटली थ्योरेटिकल, आपको सिखाया जाएगा। एंड कहीं कहीं पे कुछ सेंटेंसेस होंगे जो हमारे डे टू डे लाइफ के होंगे, तो वहां पे मैं आप लोगों को थोड़ा स्पोकन के लिए मैं प्रैक्टिस करा सकती हूँ ऑन द रियल टाइम, ठीक है। लाइक कोई इंपॉर्टेंट सेंटेंस है तो वो मैं बोल सकती हूँ कि आप लोग 5 to 10 टाइम्स रिपीट करो क्लासेस में ही, ये हो सकता है। अदरवाइज ये नीचे मैं थोड़ा जूम कर रही हूँ, देख सकते हो ये सारा स्टेप्स है, लाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस स्ट्रक्चर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, वर्ड, subject verb agreement, tense, voice narration, adverb preposition and last question tag। तो इतनी सारी चीजें हैं जो अभी तक मैंने सोचा है कि ये सब चीजें सिखानी है, इससे ज्यादा भी बता सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड एक और चीज है मुझे आप लोगों से जाननी है कि
आप लोग ग्रामर पूरे बेसिक तौर पे मतलब कि जस्ट स्पोकन के लिए सीखना चाहते हो, या फिर आप लोगों की ऐसी कोई इच्छा है कि हाँ हमें इन डिटेल ग्रामर जानना है, लाइक कॉम्पिटिटिव लेवल वाली, ऐसा कुछ नहीं आप जानना। नहीं, डिटेल तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, थोड़ा स्पोकन टाइप ही सही रहेगा। अच्छा ठीक। आजरा? नहीं, बेसिक नहीं जानना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके, ये मुझे जानना था क्योंकि मुझे क्या है, मुझे अगर कोई चाहता है उस तरह से सीखना तो आई विल बी हैप्पी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ठीक है, तो इससे मुझे एक आइडिया हो गया कि आप लोगों के लिए मुझे कैसे रेडी करना है ग्रामर को। मुझे बहुत डिटेल में उस तरह से नहीं जाना है, लाइक कॉम्पिटेटिव लेवल वाला क्वेश्चन सॉल्व करना, वो वाला नहीं। इतना करना है जिससे आपको समझ में आ जाए और आप उसे स्पोकन के टाइम में यूज कर सको एंड क्लियरली उसको समझ सको। ठीक है, ओके। लास्ट होमवर्क क्या होगा आपका? सिंपल एक्टिविटीज, हाँ ग्रामर जो भी आप सीखोगे उससे रिलेटेड आपको होमवर्क दिए जाएंगे और क्या। ठीक है, अब देखो ये आपका रहा डे 5 स्पोकन इंग्लिश। ये 5th जो है आपका स्पोकन के लिए है। डे 5 इज फुल्ली डेडिकेटेड टू स्पीकिंग इंग्लिश कॉन्फिडेंटली और स्पोकन स्ट्रैटेजीज। हमने स्पोकन में ना ये सारी चीजें रखी है, लाइक इंटरव्यू के लिए टॉपिक बेस्ड स्पीकिंग एंड डे लाइफ कॉन्वर्सेशन। ठीक है, इंटरव्यू के लिए लाइक इंटरव्यू आप देने जा रहे हो तो वहां पे आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उसके लिए आपको कैसे आंसर देने हैं, ये सारी चीजें हैं। एंड देन है टॉपिक बेस्ड स्पीकिंग। टॉपिक बेस्ड मतलब कि समझो मैंने आपको एक टॉपिक दिया लाइक योर कंट्री इंडिया, तो आपको अपनी कंट्री के बारे में एक्सप्लेन करना है। या फिर रोज, ओके, द किंग ऑफ फ्लावर एंड इस तरह से बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं, लाइक आपको अपने स्टेट के बारे में बतानी है 10 से 15 लाइंस इन सब के बारे में। तो ये दोनों जो है इंटरव्यू एंड टॉपिक बेस्ड स्पीकिंग, ये हम थोड़ा बाद में करेंगे, ओके। लेकिन पहले क्या है ना, ये हमारी डेली लाइफ की जो कॉन्वर्सेशन है इस पे हमारा स्टार्टिंग में ज्यादा फोकस होगा कि डेली लाइफ में आपको कैसे बातें करनी है। ठीक, और ये हमारे लिए काफी इंटरेस्टिंग भी होगा और हमारे लिए समझना आसान भी होगा, बिकॉज एवरी डे वी फेस आवर डेली लाइफ। एवरी डे हम अपना इंटरव्यू फेस नहीं करते, बट एवरी डे हम अपना डेली लाइफ जो है हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक, हम सुबह उठ चुके हैं, हम स्लीपर्स पहनने जा रहे हैं या वॉक पे जा रहे हैं, जॉगिंग करने जा रहे हैं, दोस्तों से बातें कर रहे हैं। ये हमारा ना 24 आवर्स चलता रहता है, चलता रहता है। तो सबसे पहले हमें इसके बारे में जाननी है कि हमें कौन सी सेंटेंसेस कैसे बोलनी है, कहाँ पर क्या बोलना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। क्या लगता है आप लोगों को, यही सही होगा ना, डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन? हाँ डेली लाइफ ठीक है। हाँ, बेसिकली तो वही होता है। ओके, और ये डेली लाइफ में मैं क्या करूंगी ना, मैं खुद एक स्टोरी टाइप कॉन्वर्सेशन बनाऊंगी आप लोगों के लिए। और आप 5 हो, 5 में से 2 लोगों को चूज करूंगी और उन लोगों को एक दूसरे से बातें करनी है। फिर बचे 3 लोग, उसमें से 2 लोगों को चूज करूंगी। फिर अकेले जो भी है फिर उसके लिए कोई एक पार्टनर चूज करूंगी और देन कॉन्वर्सेशन करनी है। मैं भी कभी कभी बातें करूंगी। और इतना ज्यादा हम लोगों को ना टाइट फिटेड नहीं हो जाना है अपने रूटीन के साथ। कभी कभी हम सब मैं ही बात करने लगूंगी आप लोगों से, लाइक ऐसे कैजुअल कन्वर्सेशन हमारे चलेंगे, मजे मस्ती वो सारे कुछ। ठीक है, बट ऐसा नहीं समझना है कि कैजुअल कॉन्वर्सेशन में आप कुछ सीखेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एवरी कॉन्वर्सेशन विल टीच यू समथिंग ईच एंड एवरी टाइम। ठीक है, conversations will be shown on the screen, 2 or 3 students will be selected, student will perform the conversation by looking at the screen. हाँ, कॉन्वर्सेशन जो होगा वो मैं जिस तरह से आपके सामने ये पूरा प्रेजेंटेशन है ना आपका डेली रूटीन, उसी तरह से मैं सारा कॉन्वर्सेशन भी लिख कर ले आऊंगी। आपको देख देख कर बोलना है, ठीक है, कोई लोड नहीं लेना है, आपको देख कर बोलना है। लेकिन कुछ दिनों के बाद मैं कॉन्वर्सेशन जो है उसको हटा भी दूंगी, मतलब कि मेरी बात को समझो। लाइक मैंने एक कॉन्वर्सेशन ले आई आप लोगों के लिए, उस कॉन्वर्सेशन का नाम होगा कि अ मीटिंग बिटवीन 2 फ्रेंड्स इन पार्टी। पार्टी में 2 फ्रेंड्स मिलते हैं तो उनके बीच में कैसे कैसे बातें हो रही है। ठीक है, तो वो दोनों आपस में क्या बातें करेंगे कि हाँ आप अभी कहाँ रह रहे हो, या अभी क्या चल रहा है, पार्टी कैसा लग रहा है, सॉन्ग्स कैसे लग रहे हैं, ठीक है, डांस वांस तुमने किया या नहीं, इस तरह से जो भी। तो ये सारी चीजें होंगी। तो ये उसका एक नाम रख दूंगी कि 2 फ्रेंड्स इन अ पार्टी। ठीक है, उसको मैं आप लोगों से खूब प्रैक्टिस करवाऊंगी कैसे बात करनी है। और एक दिन मैं अचानक से सबटाइटल हटा दूंगी और मैं जस्ट आपको बोलूंगी कि आपका टॉपिक है पार्टी, 2 फ्रेंड्स इन अ पार्टी।
ठीक है, कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स इन अ पार्टी, एंड देन आपको स्टार्ट हो जाना है, और वहां पे आपके लिए कोई भी सबटाइटल नहीं होगा, आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा उसके लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग हर एक कॉन्वर्सेशन को बहुत ही सीरियस लीजिएगा प्लीज, कैजुअल नहीं लेना है। जो भी मैं दूंगी उसको आप सीरियसली पढ़ना, याद करना और रेडी रहना। ओके। हाँ, कॉन्वर्सेशन में ना एक और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं ऐड करूंगी। आपके सामने मैं एक एनिमेटेड वीडियो ले आऊंगी। एनिमेटेड वीडियो में आपको दिखेगा देयर वुड बी एन एनिमेटेड वीडियो, अ पर्सन is waking up from the bed, and he or she is finding his or her sleepers, like where the sleeper, and he wants to know the timing, and he is brushing his teeth, and he is going for a walk, he is going for jogging। ये सारा कुछ एक्टिविटी आपको दिखेगा वीडियो में, एनिमेटेड वीडियो में, एंड आपको वो देख देख कर ना इंग्लिश में बताना है कि हाँ वो ये कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। ओके, लाइक ही इज फाइंडिंग स्लीपर्स, he wants to get the time, like what is the time right now, and he is going for a walk, he is going for a jogging। इस तरह से आप लोगों को देख देख कर उसे बताना है, ये काफी इंटरेस्टिंग होगा। ओके, यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट? I think clear all. Yes. समझ आ रहा है सबको? हाँ Yes. All clear. ओके, और इसी तरह से एक एनिमेटेड कार्टून समझो, जस्ट कार्टून जो यूट्यूब पे होता है ना, उस तरह से दिया जाएगा, और आपको उसके एक्टिविटी को देखना है, लाइक वो क्या क्या कर रहा है, और उसे फिर इंग्लिश में बोलना है और कंटिन्यूअसली बोलते रहना है। ये आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। अभी तो मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ, जब रियल टाइम पे आप लोग इसे करोगे ना, बड़ा मजा आएगा और बहुत कुछ सीखने मिलेगा इससे। प्रैक्टिस द सेम कन्वर्सेशन मल्टीपल टाइम्स, मेमोराइज ईच सेंटेंस। क्लोजिंग मोटिवेशन है ये आप लोगों के लिए, जस्ट इसे देख लो, एंड आपका ओरिएंटेशन क्लास एंड होता है। दिस कोर्स इज नॉट अबाउट परफेक्शन, इज अबाउट प्रोग्रेस। ओके, अटेंड रेगुलरली। आई रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग रेगुलर रहे, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आप लोग रेगुलर रहेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। श्वेता, अच्छा, एक क्वेश्चन है, अगर कभी किसी काम की वजह से नहीं हो पाया तो क्लास मिस हो गया तो? नहीं, एवरीथिंग वुड बी रिकॉर्डेड, यू विल गेट दैट। ओके, आपको सब Okay. रिकॉर्डेड मिल जाएगा। प्रैक्टिस ऑनेस्टली, Okay. स्पीक विदाउट फेयर, यू विल इम्प्रूव, गारंटीड। ओके, ये आपके लिए एक क्लोजिंग स्टेटमेंट था। बाकी ठीक है, इतना ही था हमारा। कल से हम लोग क्लासेस स्टार्ट करते हैं अपने। एंड हाँ, किसी वजह पहले तो आप ट्राई करना कि मिस ना हो, बट फिर भी अगर मिस होता है तो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। ठीक है। बाकी आई नो फेस देखकर लग रहा है कि काफी आप लोग सुनते सुनते बोर एंड थक चुके हो, बट कोई क्वेश्चन है तो बोलो, और उसके बाद फिर एंड करते हैं। मेरा लैपटॉप 23% चार्ज है, तो प्लीज कंटिन्यू। ठीक है, अभी चलो, बाय, गुड नाइट। ओके, गुड Bye. नाइट।